وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک اور برا دن تھا جب مجھے اپنی حقیقت کا پتہ چلا، لیکن میں نے اپنی کمزوری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، کیونکہ میں دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ سب کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا انجام ہوگا۔ آج میں اپنی زندگی اور گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ میرا نام افضل ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے، لیکن سرکاری نوکری ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، اسی لیے گھر کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ گھر میں دادی کے علاوہ اماں، ابا اور میری 4 بہنیں بھی تھیں۔ میں چاروں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ میرے ابا اور اماں آپس میں کزنز تھے اور اماں کو میری دادی خود اپنی پسند سے بیاہ کر لائی تھیں، لیکن جب اماں کے ہاں ایک کے بعد ایک بیٹیاں پیدا ہونے لگیں تو دادی اماں ان کو ناپسند کرنے لگ گئیں، یہاں تک کہ وہ اپنی پوتیوں کو بھی کچھ اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ عام طور پر دادی کی طرح ان کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ بس ان کے گھر میں پوتا ہنستا کھیلتا ہوا نظر آئے، لیکن ایک کے بعد ایک میری 4 بہنیں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد تو جیسے دادی نے امید ہی چھوڑ دی تھی اور اماں کے ساتھ دشمنی دل میں ڈال لی۔ دادی کو لگتا تھا کہ 4 بیٹیاں کر کے میری اماں نے کوئی گناہ سرزد کر دیا ہے، اس لیے وہ میری اماں کو اپنے رویے سے سزا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ حالانکہ میری اماں نے دادی کی زندگی بھر ان کی خدمت ہی کی تھی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھیں، اس کے علاوہ ان کے گھٹنوں اور جوڑوں میں اکثر درد رہتا تھا، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی۔ اماں نے دادی کو بستر پر بٹھا کر کھلایا، ان کے پیروں کی روز مالش کر کے پھر اماں سویا کرتی تھیں۔ ان کی ایک آواز پہ دوڑی چلی جاتی، اور پھر جب میری بڑی تینوں بہنیں اسکول جانے لگیں تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر دادی کے کام کیا کرتی تھیں، لیکن دادی کے پاس ان کے لیے صرف ڈانٹ پھٹکار ہی ہوتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے بیٹے کی یہ 4 بیٹیاں ہی گھر کے برے حالات کی وجہ ہیں۔ حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، مگر انہیں صرف اور صرف پوتا چاہیے تھا۔ جب میری اماں ایک مرتبہ پھر امید سے ہوئی تو دادی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اب کی بار پوتا نہیں ہوا تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنے خاندان کا وارث ہی چاہیے۔ اس بات کو سن کر میری اماں بہت ڈر گئی تھی۔ انہیں خود بھی بیٹے کی خواہش تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ بیٹیاں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ اماں کی تو جان تھی میری سب بہنوں میں۔ لیکن دادی کی اس دھمکی نے اماں کو بہت ڈرا دیا تھا۔ اماں نے جب ابا سے اس بارے میں بات کی تو ابا نے مکمل تسلی دی اور کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہوں، کبھی بھی نہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہونے دوں گا اور نہ اپنی بچیوں کی ماں کے ساتھ، اسی لیے تم فکر نہ کرو۔ اماں کو ابا کی طرف سے تو تسلی تھی، لیکن دادی نے انہیں دن رات پریشان کر رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ سارا وقت گزرا اور پھر دادی کی خواہش پوری ہو گئی۔ اماں اور ابا کے گھر میں پیدا ہوا۔ میرا نام دادی نے افضل رکھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی 4 پوتیوں سے زیادہ افضل ہوں۔ میری پیدائش پر دادی نے بہت خوشیاں منائی تھیں، رشتہ داروں میں مٹھائیاں بھجوائیں اور محلے میں صدقہ خیرات بھی خوب کیا تھا، اور تو اور اپنے زیور میں سے سارے کا سارا زیور میرے نام کرتے ہوئے اماں کے حوالے کر دیا کہ یہ میرے پوتے کا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے کاروبار میں لگا دینا یا پھر اس کی دلہن کو چڑھا دینا۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی دادی نے اماں سے یہ بھی کہا تھا کہ خبردار، جو اپنی کسی بیٹی کو میرے پوتے کے حصے کا زیور دیا یا خود رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اماں کو دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ اماں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ پوتا یا پوتیاں آخر تھیں تو انہی کی، لیکن وہ ہمیشہ میری بہنوں کے بارے میں ایسے ہی بات کرتی تھیں۔ میرے پیدا ہونے کے بعد بھی دادی کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ میری بہنوں کو پہلے کی طرح ہی ڈانٹتی پھرکارتی رہتی تھیں، لیکن میرے ساتھ خوب لاڈ پیار کرتی تھیں۔ دن کا زیادہ حصہ مجھے اپنے پاس رکھا کرتی، لیکن جب میرا کوئی کام کرنا ہوتا تو اماں کو آواز دے کر بلا لیتی اور اماں سے ہی میرا ہر کام کرواتی تھیں۔ اماں نے کبھی بھی دادی سے مجھے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ دادی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اسی لیے وہ مجھے سارا دن دادی کے کمرے میں ان کے بیڈ پر لٹا دیتی اور خود کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میری بہنیں اب بڑی ہو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے کام وہ اماں کے ساتھ کروانے لگیں تو اماں کو اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی میں 1-2 سال کا ہی وقفہ تھا، اسی لیے عمر میں ہم سب ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصے بعد میں بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اسکول جانے لگ گیا۔ ابا نے ہم سب بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اسکول میں ہی داخل کروایا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، جو چیز وہ میرے لیے لاتے وہی میری بہنوں کے لیے لایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ کبھی بھی میری بہنوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔
या कोई एहसास कमतरी ना हो, क्योंकि जिस तरह का रवैया उनके साथ दादी का था तो बहुत मुमकिन था कि उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा। मैं भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, मैंने अब्बा को हमेशा बेटियों से बहुत लाड प्यार करते हुए ही देखा था। वो कहते थे कि बेटियां तो माँ बाप के आंगन में चिड़िया की तरह होती हैं, जो चहचहाती हैं तो घर में रौनक होती है, फिर जब वो उड़ जाती हैं तो घर भी सुनसान हो जाते हैं। अब्बा की देखा देखी मैं भी अपनी बहनों के साथ बहुत अटैच होता जा रहा था। मेरी चारों बहनें अलग कमरे में सोया करती थीं, जबकि मैं अम्मा और अब्बा के साथ उनके कमरे में सोता था। लेकिन जब मैं 5 साल का हो गया तो मैंने अपनी बहनों के साथ उनके कमरे में सोने की जिद शुरू कर दी। अम्मा ने फिर मेरा बिस्तर भी बहनों के साथ उनके कमरे में ही लगा दिया था। वो जिस तरह बात करती मैं भी उसी तरह बात करने लग जाता था तो सब हंसते, लेकिन दादी को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आता था कि मैं लड़कियों की तरह बात करता हूँ। वो मुझे ऐसा करने से मना करती थी, मगर मुझे अच्छा लगता था अपनी बहनों की तरह बात करते हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 3-3.5 साल का था तो जब किसी ईद या शादी के मौका पर अम्मा मेरी बहनों को मेकअप करके तैयार करती थी तो मैं भी जिद करके लिपस्टिक लगवाया करता था। और फिर जब मैं उनके साथ उनके कमरे में ही रहने लग गया तो कभी अलमारी से अपनी बहन के कपड़े निकाल कर पहन लेता तो कभी अम्मा की लिपस्टिक उठा कर लगा लेता था। शुरू में तो सबने हंसी मजाक में ये सब कुछ उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था तो अम्मा और अब्बा, खास तौर पर दादी, मुझे रोकने लग गए कि मैं लड़का हूँ, इसीलिए मुझे अपनी बहनों की तरह लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही मेकअप करना चाहिए। मगर मुझे तो मेकअप भी बहुत पसंद था और लड़कियों वाले कपड़े तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। अम्मा और अब्बा हमेशा मेरे लिए पैंट शर्ट या शलवार कमीज लेकर आते थे, लेकिन मुझे अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते थे। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि ईद के मौका पर हमारे घर कुछ मेहमान आए थे, जिनमें मेरे मामू की फैमिली भी शामिल थी। अब्बा ने उन सब की दावत की थी और बड़े एहतमाम के साथ घर में तैयारी हुई थी। अम्मा और अब्बा ने उस ईद पर मुझे सफेद काटन का सूट बना के दिया था। मैं 6 साल का था। सुबह को अब्बा के साथ ईद की नमाज पढ़ के वापस आया तो अपनी बहनों के साथ खेलने लग गया। मेहमान जब आए तो मैं उस वक्त अपनी बहनों के साथ उनके कमरे में था। अम्मा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को आवाज देकर बाहर बुलाया कि सबसे आकर मिलो और मेरे साथ कुछ मदद भी करवाओ, तो वो दोनों बाहर चली गईं। उसके बाद मेरी छोटी दोनों बहनें भी कमरे से बाहर निकल गईं तो मैंने अपनी सबसे छोटी बहन के कपड़े निकालकर वो पहन लिए। मुझे फ्रॉक्स बड़े पसंद थे। उस दिन मैंने फ्रॉक ही पहना और फिर लिपस्टिक भी लगा ली। वहीं टेबल पर मुझे अपनी एक बहन की चूड़ियां पड़ी हुई नजर आईं तो मैंने वो भी उठाकर पहन ली और खुशी से झूमने लग गया। फिर मैं ऐसे ही बाहर मेहमानों के सामने चला गया तो सब मुझे देखकर खूब हंसने लग गए। मुझे उनका हंसना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे गुस्सा आने लग गया और मेरी दादी को भी उनका हंसना बहुत बुरा लग रहा था। अम्मा मुझे फटाफट पकड़कर कमरे में ले गई और मेरे चेहरे को साफ करते हुए मुझे समझाने लग गई कि तुम एक लड़के हो और लड़कों को हमेशा लड़कों की तरह ही रहना चाहिए। माना कि तुम 4 बहनों के साथ रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी तरह कपड़े पहनने और मेकअप करने लग जाओ। ऐसा करोगे तो सब तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। और तो कुछ नहीं, मगर अम्मा की मजाक वाली बात मुझे समझ आ गई। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। फिर अम्मा ने मेरे कपड़े बदलवाए और मुझे बाहर ले गई। कुछ दिन मैंने अपने दिल पर बड़ा कंट्रोल रखा। मुझे अम्मा की बात बार बार याद आती थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मुझ पर हंसे, इसलिए अपने आप को समझाता रहा। मगर था तो आखिर मैं छोटा सा बच्चा। 2 दिन और गुजरे तो सब कुछ भूल गया और दोबारा से वही हरकतें करना शुरू कर दी। कभी चूड़ियां पहन लेता तो कभी अपनी छोटी बहन के कपड़े पहनकर घर में भागने दौड़ने लग जाता। मुझे इधर उधर भागता हुआ देखकर दादी गुस्सा करने लग जाती थी। हालांकि वैसे तो उन्होंने कभी भी मुझे डांटा तक नहीं था, लेकिन जब मैं लड़कियों की तरह बन सवर कर उनके सामने जाता तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा कहती थीं कि 4 बेटियां मेरे बेटे के सीने पे मोंग दलने के लिए काफी हैं। अब तुम भी उनकी देखा देखी लड़की बनने की कोशिश करते हो। मुझे दादी की बातें समझ नहीं आती थी, मगर मुझे उनको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो हमेशा मेरी बहनों को बुरा भला कहती थी, इसलिए वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक मर्तबा मैंने अम्मा से भी ऐसे कहा तो वो मुझे समझाने लग गईं। फिर इसी तरह वक्त गुजरने लगा और मैं 9 साल का हो गया था। मेरी सबसे बड़ी बहन 14 साल की हो चुकी थी। अब वो अम्मा के साथ बहुत सारे काम करवाने लग गई थी। स्कूल में भी पढ़ती थी और दादी की बातें अभी तक वैसी की वैसी ही सुनती भी थी। मैंने अपनी अम्मा या बहनों को कभी भी दादी के सामने जबान चलाते हुए नहीं देखा, बल्कि वो तो पलटकर दादी को कोई जवाब तक नहीं देती थी। खामोशी से उनकी सारी कड़वी कसीली बातें सुन लेती। उसके बावजूद उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने देती थी।
मेरी अम्मा रोजाना रात को दादी के पैरों में तेल लगा के मालिश करती, फिर जाकर अपने कमरे में सोती थी। और जब मेरी बड़ी बहन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल हुई तो उसने अम्मा से कहकर ये जिम्मेदारी खुद ले ली। अब वो रोजाना दादी के पैरों की मालिश भी करती और उन्हें दबाती भी थी। उसके बावजूद दादी ने कभी भी ना तो उसे दुआ दी थी और ना ही उससे खुश हुई थी। मैं अब थोड़ी बहुत बातें तो समझता था। मुझे मालूम था कि दादी को अपनी पोतियां पसंद नहीं हैं, इस वजह से वो ऐसे करती हैं, लेकिन हर बात की भी एक हद होती है। मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी इस घर और घर के लोगों के लिए वक्फ कर दी थी, उसके बावजूद उन्हें बस बातें ही सुनने को मिलती थीं। फिर मेरी बहनों का क्या कसूर था कि अगर वो लड़कियां हैं, क्या लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं होती या उनकी कोई हैसियत नहीं होती? एक मर्तबा जब हम तीनों बहन भाई बरामदे में खेल रहे थे, मेरी बहनों ने अपने खिलौने वाले बर्तन सजा रखे थे और वो एक दूसरे को चाय बना कर दे रही थी, तो मैं भी उनके साथ खेलने लग गया। उन दोनों ने अपने छोटे छोटे दुपट्टे सरों पर लिए हुए थे, मैंने भी उनका एक दुपट्टा लेकर ओढ़ लिया। इस बात पर तो दादी का पारा हाई हो गया। उस दिन जब वो मेरी बहनों को गालियां निकाल रही थीं, तो मैं उनके सामने बोल पड़ा। हालांकि मैं छोटा सा था, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी बहनों को कुछ ना कहा करें, तो वो हैरान हो गई और कहने लगी कि देखा, अपनी बहनों की तरह अब तुम भी बदतमीज और बदतहजीब हो गए हो क्योंकि उनके साथ जो रहते हो। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहनें बदतमीज नहीं हैं, बल्कि वो तो आपकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करती हैं। इस बात पर तो दादी का पारा और हाई हो गया, लेकिन उसी वक्त अम्मा कमरे में आ गईं और उन्होंने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया। उस दिन के बाद से दादी मेरे सामने कुछ एहतियात करने लग गई थी। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उनसे दूर हो जाऊं या इस बात की वजह से उनसे नफरत करने लग जाऊं, इसलिए अब वो मेरे सामने मेरी बहनों को कुछ नहीं कहती थी। इस बात पर मेरी बहनें बड़ी खुश थीं। उन्हें लगता था कि उनके भाई ने इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। मैं अपनी बहनों को खुश देखकर इतराता फिरता था। यह हकीकत थी कि मुझे अपनी बहनों से बहुत प्यार था, क्योंकि वो भी मुझसे बेहद प्यार करती थीं। मेरी किसी भी फरमाइश को कभी टालती नहीं थी, अपनी चीज भी मुझे दे दिया करती। और फिर पता नहीं क्यों मेरे अंदर अजीब से एहसासात और जज्बात उभरते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी लड़कियों की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनूं, लंबे लंबे बाल रखूं और हर वक्त मेकअप करके फिरता रहूं, मगर मुझे ऐसा करने कोई नहीं देता था। फिर जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरी दादी का इंतकाल हो गया। दादी के इंतकाल के बाद तो जैसे घर में सुकून का माहौल पैदा हो गया था। अब कोई किसी को गालियां नहीं देता था और ना ही किसी पर गुस्सा करता था। अब ना तो मेरी बहनें दादी की गालियां सुनकर रोती थीं और ना मेरी अम्मा का दिल जलता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि दादी के जाने के बाद मैं बहुत खुश था। हालांकि मेरी अम्मा अक्सर बातों में अपनी सास का जिक्र किया करती, तो मैं उनसे कहता कि आपकी सास ने हमेशा आपको बुरा भला ही कहा है, उसके बावजूद आप उनको याद करती हैं। तो अम्मा मुस्कुरा देती थी। अब्बा ने दादी का कमरा सेट करवा के मेरी चारों बहनों को दे दिया था, क्योंकि वो बड़ा कमरा था। उन चारों के लिए अब्बा ने अलग अलग बेड वहां पर लगवा दिए और जिस कमरे में पहले हम लोग इकट्ठे रहते थे, अब वो कमरा सिर्फ मेरे पास था। अब पूरा कमरा सिर्फ मेरा था, इसीलिए मैं जो चाहता अपने कमरे में कर सकता था। मुझे पूरी आज़ादी थी। मैं किसी भी वक्त मौके से फायदा उठाते हुए अपनी बहनों का एक आध सूट छुपाकर अपने कमरे में ले जाता। इसी तरह अम्मा की लिपस्टिक और बहनों की चूड़ियां भी मैं अपने कमरे में छुपा कर रखी हुई थी, जो अम्मा और मेरी बहन ने कुछ दिन तक घर में ढूंढती रही, मगर उन्हें यह ख्याल नहीं आया था कि वो मेरे पास भी हो सकती हैं। अब मैं रोजाना रात को लड़कियों वाले कपड़े पहनकर चूड़ियां पहनता और लिपस्टिक लगा के अपने आप को आईने में देखता। मैं दुबला पतला सा बच्चा था, रंगत गोरी थी और अपनी बहनों से नए नक्श भी मिलते थे, इसलिए लड़कियों वाले कपड़े पहनकर और लिपस्टिक लगाने के बाद तो मैं लड़की ही लगता था। मुझे अपने आप को इस भेस में देखकर बहुत खुशी महसूस होती थी। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मगर मेरे साथ जो भी था वो फितरी तौर पर और बचपन से था। ऐसे में ही मैं बड़ा होता गया। मैं जब कॉलेज में पहुंच गया, उस वक्त भी मेरे अंदर इसी तरह के जज्बात और एहसासात बाकी थे। मैं अब तक चोरी छुपे रात के टाइम अपने कमरे में चूड़ियां पहन के सुर्खी लगा लेता हूँ और बहुत खुश होता था। हाँ, लेकिन अब मेरे पास लड़कियों वाला कोई ड्रेस नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैं बच्चा नहीं था। इसलिए एहतियात करता था कि कोई भी मुझे इस तरह ना देख ले, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी ने मुझे इस तरह देख लिया तो मेरी खैर नहीं है। और फिर एक रात वही हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मा और अब्बा अपने कमरे में सो रहे थे, मेरी बहनें भी अपने कमरे में थीं, तो मैंने रोजाना की तरह उस रात भी हल्का फुल्का मेकअप किया, सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई और कलाइयों में सुर्ख रंग की चूड़ियां पहन के अम्मा का गोटे वाला दुपट्टा लेकर अपने आप को शीशे में देखने लग गया। अभी मैं ऐसे कर ही रहा था कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा तेज तेज बजने लग गया। मेरी सबसे बड़ी बहन की आवाज थी, जो मुझे मुसलसल पुकार रही थी। अब्बा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी।
इस वजह से मैंने भी हड़बड़ाकर अपना हुलिया बदले बिना ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन वो मुझे देखकर बेहद हैरान हुई, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकतें अब तक करता हूँ। तब उसने मुझे कहा कि अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। मैंने दुपट्टा वहीं पर फेंका और भागकर अब्बा के कमरे में चला गया। अब्बा की तबीयत वाकई बहुत खराब थी, उन्हें होश ही नहीं था कि वो कहाँ पड़े हैं, और अम्मा भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन मेरी तरफ देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अम्मा ने मुझे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की। उसके बाद अम्मा ने मुझे मेरा हुलिया बदलने के लिए कमरे में भेज दिया। फिर मैं और मेरी बड़ी बहन अब्बा को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अब्बा को माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टरों ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने के लिए कहा था, और ये भी कि उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तकरीबन उन 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद हम अब्बा को लेकर घर आ गए। उस रात तो अम्मा ने मेरी किसी बहन ने मुझसे कोई बात नहीं की, क्योंकि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। अगले 2 दिन भी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, मगर जैसे ही अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर हुई और वो दुकान पर जाने लगे तो अम्मा और मेरी बहनों ने मुझे कटहरे में खड़ा कर लिया। अब वो मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रही थी कि उस रात वो हुलिया क्यों बनाया हुआ था। लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए मैंने उन्हें सच सच बता दिया। उस रात नहीं, मैं हर रात ऐसे ही करता हूँ और मुझे खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। ये सुनकर अम्मा ने सर पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। बहनों वाले घरों में रहने का मतलब ये तो नहीं होता कि लड़का भी लड़कियों की तरह ही करने लग जाए। तुम्हारे अब्बा भी तो इसी घर में रहते हैं, तो तुम उनको क्यों नहीं देखते? तब मैंने अम्मा से कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी फितरत और दिल के हाथों से मजबूर हूँ, मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकता। फिर अम्मा बेहद परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ मसला क्या है। वो अब्बा की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रही थी, और फिर जब तकरीबन 2 हफ्ते बाद अब्बा की तबीयत काफी बेहतर हो गई तो अम्मा ने मेरे सिलसिले में अब्बा से बात की। अब्बा भी ये बात सुनकर परेशान हो गए। अम्मा ने उनसे कहा कि अफजल का किसी डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि वो इस तरह क्यों करता है, और सब कुछ ठीक तो है ना। अब्बा ने अम्मा का मतलब समझते हुए इस बात में सर हिला दिया, और फिर वो अगले दिन ही मुझे एक बड़े डॉक्टर के पास ले गए। मैं उनके साथ चुपचाप चला तो गया था, मगर अभी हम वेटिंग रूम में बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि अचानक से अब्बा को घबराहट शुरू हो गई। मैं परेशान हो गया कि कहीं फिर से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसीलिए अब्बा को वहां से लेकर फौरन उनके डॉक्टर के पास चला गया। इस तरह मैं खुद डॉक्टर से बच गया था। उसके बाद अब्बा और अम्मा ने मुझे कितनी मर्तबा डॉक्टर के पास जाने का कहा, मगर मैं नहीं जाता था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक डर था कि डॉक्टर ने जाने मेरे बारे में क्या इंकशाफ करेगा, जिसे सुनकर शायद मैं खुद बर्दाश्त न कर सकूं। इसलिए अब मैं बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था। अम्मा और अब्बा या बहनों के सामने कभी कोई ऐसी बात या हरकत नहीं करता था जिससे उन्हें मुझ पर शक हो। फिर कुछ अरसे बाद अब्बा अम्मा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी, तो घर में अब अफराद भी कम हो गए थे। मेरी छोटी दोनों बहनें भी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थीं और अब वही घरदारी संभालती थीं। कुछ महीने गुजरे कि अम्मा और अब्बा को मेरी शादी करने का ख्याल आ गया, और अम्मा इस बात पर डटी हुई थी कि अब मेरी शादी करवा के ही रहेंगी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था और उसकी वजह मुझे नहीं मालूम थी, मगर अम्मा पीछे नहीं हटी, मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी, और फिर उन्हें मेरे लिए शुमाइला पसंद आ गई। अम्मा ने मुझे भी शुमाइला की तस्वीर दिखाई थी। बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरा दिल शादी के लिए मानता ही नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा तो बदनामी की वजह से मैं जी नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं ये भी जानता था कि मेरे घर वाले मेरा हर हाल में साथ देंगे, मगर मैं किसी की भी नजरों में कमतर नहीं होना चाहता था। बस यही वजह थी कि मैं शादी करने को तैयार न था। लेकिन अब अब्बा की हालत और अम्मा की इसरार को देखते हुए मैंने फैसला उन पर छोड़ दिया। मुझे शुमाइला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मा अब्बा ने मंगनी करने की बजाय सीधा शादी की तारीख तय कर दी। शुमाइला अम्मा की सहेली की बेटी थी, इस वजह से शादी की तारीख भी जल्दी तय हो गई। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मेरी शादी थी। घर में खूब तैयारियां चल रही थी। मेरी दोनों बड़ी शादीशुदा बहनें भी हमारे घर रहने के लिए आ गई थी, ताकि अम्मा का हाथ बटा सकें। कभी मुझे वो कोई जोड़ा दिखाते तो कभी कोई और। मैं जबरदस्ती मुस्कुरा देता था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मेरे दिल का खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूंगा। और फिर शुमाइला दुल्हन बनकर मेरे कमरे तक पहुंच गई। सारी रस्में होने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो दुल्हन घूंघट निकाले मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खामोशी से जाकर कपड़े बदले और शुमाइला के पास बैठकर उसे मुंह दिखाई में वो अंगूठी दे दी
जो अम्मा ने उसे देने के लिए मुझे दी थी। फिर मैंने उससे कहा कि कपड़े बदल कर आराम करो, तुम भी थक गई होगी। मेरी बात सुन के उसे थोड़ी सी हैरत जरूर हुई, मगर वो सर हिलाकर उठ गई। वो चेंज करने के लिए जा चुकी थी और जब वापस आई तो मैंने सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। वो खामोशी से आकर मेरे बराबर लेट गई, लेकिन मैं बेड की एक साइड पर किनारे से लगा हुआ कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, अजीब सी कैफियत से गुजर रहा था। दूसरे दिन वलीमा भी खैरो आफियत के साथ हो गया और शुमाइला अपनी माँ के घर चली गई तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून तो सिर्फ एक दिन का था। अगले दिन अम्मा ने मुझे मेरी बहन के साथ शुमाइला के घर भेज दिया ताकि मैं उसे लेकर आ जाऊं। मैं अम्मा के कहने पर बाजी के साथ वहां गया और शुमाइला को लेकर आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता रोजमर्रा की रूटीन शुरू हो रही थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन सिवाय हाँ हूं के हम दोनों में किसी किस्म का कोई और ताल्लुक या कनेक्शन नहीं पैदा हुआ था। शुमाइला मेरी झिझक और उससे दूर रहने वाली हरकत को न जाने क्या समझती होगी। ये सोचकर मुझे अजीब सा महसूस होता था, मगर मैं मजबूर था। मैं जो भी कर रहा था मुझे वही ठीक लगता था। मगर हैरत भी होती थी कि शुमाइला ने ना तो इस बात का जिक्र किसी से किया था और ना ही मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, बल्कि वो सबके सामने बड़ी नॉर्मल रहती थी। कमरे में आकर भी वो खामोश हो जाती थी क्योंकि मैं उससे बात ही नहीं करता था। हमारी शादी के चंद महीनों बाद अम्मा अब्बा ने मेरी बाकी दोनों बहनों की भी शादियां कर दी। अब घर में हम सिर्फ 4 लोग थे। अब्बा और मैं दुकान पर जाते थे। अब मैं ज्यादा वक्त दुकान पर गुजारता था क्योंकि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन जब हम चारों भी घर में इकट्ठे होते तो बस खाने की मेज पर ही बातचीत होती थी। उसके अलावा तो ज्यादा बात करने का किसी को वक्त ही नहीं मिलता था। माँ और शुमाइला घर के काम काज में लगी रहती थी। सारा घर शुमाइला ने संभाल लिया था, लेकिन अम्मा फिर भी उसकी मदद करवा दिया करती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। हालांकि नॉर्मल तो कुछ भी नहीं था, मगर ये बात तो सिर्फ मुझे और शुमाइला को पता थी। बाकी सब तो ये सोच सोच कर खुश होते थे कि अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ, शादी भी हो गई है, जल्द ही अपनी जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा। अम्मा और अब्बा को अब मेरे बच्चों की तमन्ना हो रही थी। हमारी शादी को जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अम्मा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना शुरू कर दिया था। हम दोनों भी अब काफी हद तक नॉर्मल एक दूसरे से बात करने लग गए थे। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती या शुमाइला को मुझसे कोई काम होता तो एक दूसरे को बिला झिझक कह देते थे। धीरे धीरे वो मेरे करीब आती गई और मैं जिस चीज से बचना चाहता था बच नहीं सका। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अम्मा और अब्बा की जो पोते पोते की ख्वाहिश है वो कभी पूरी हो सकती है या नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि कमी मुझ में है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता, मगर ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था। मैं अंदर ही अंदर घुल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कमी का ये एहसास मुझे अंदर से मार देगा और ख़त्म कर देगा। लेकिन मैं अब शुमाइला से मोहब्बत करने लगा था। वो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। न सिर्फ मेरे माँ बाप की खिदमत करती बल्कि मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मगर मेरी बहनें अपने मैके आती तो शुमाइला उन्हें पलकों पर बिठा लेती थी। उसकी खूबियाँ इतनी थीं कि घर वाले तारीफें करते नहीं थकते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि पता नहीं जिंदगी के कौन से दौर में इतनी अच्छी लड़की का दिल मेरी वजह से दुखेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उसे आज़ाद करके उसे छोड़ दूं ताकि वो अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ गुजार सके जो वाकई उसके काबिल हो, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत अब मेरे अंदर नहीं थी। इसी कश्मकश में हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया। शादी की सालगिरह पर मेरी चारों बहनें हमारे घर आईं। सब बहुत खुश थे। शुमाइला और मैं भी बड़े खुश थे। हमने केक काटा और देर तक सब मिलजुल कर बातों में मसरूफ रहे। लेकिन अगली सुबह अचानक शुमाइला की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। सब परेशान थे कि अचानक उसे क्या हो गया। अम्मा ने मुझे शुमाइला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। मैं उसे लेकर चला गया, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि शुमाइला माँ बनने वाली थी। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं शुमाइला के किरदार पर शक भी नहीं कर सकता था। एक तरफ मेरे जहन में अपने मुतालिक अपने दोस्तों की कही हुई बातें घूम रही थी। वो मुझे कहते थे कि अफजल, तुम एक लड़के नहीं बल्कि ख्वाजा सरा हो। मैं उनकी बात नहीं मानता था। तब उन्होंने ख्वाजा सराओं के बारे में मुझे बहुत सी मालूमात दी तो मैं भी इस बात पर यकीन करने लगा। इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं बाप बनने वाला था और ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन सी बात थी। सब घर वाले इतने खुश थे कि मैं उनकी खुशी खराब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं भी खुश होने का नाटक कर रहा था, मगर मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। फिर मैं अगले दिन एक सीनियर डॉक्टर के पास गया। उसने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। डॉक्टर के मुताबिक
मैं बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मुकम्मल तसल्ली टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही होनी थी और रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते का टाइम था। वो 1 हफ्ता मैंने जैसे कांटों पर गुजारा था। एक तरफ शुमाइला जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही थी जो किसी भी औरत के लिए बहुत खूबसूरत होता है। दूसरी तरफ मैं अपनी बीवी की उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी बाप बनूंगा। बड़ी मुश्किल से कांटों पर लौटते हुए 1 हफ्ता गुजर गया तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मेरी रिपोर्ट्स डॉक्टर के हाथ में थी। वो उन्हें पढ़ रहे थे और मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि अगर रिपोर्ट में वही सब आया जो मेरे दोस्त कहते थे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत और खुशी की इंतहा नहीं रही जब डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। मुझ में ना तो कोई कमी थी और ना ही मैं ख्वाजा सरा था। मैं एक भरपूर मर्द था। हाँ, सिर्फ मुझे नफ्सियाती तौर पर यह मसला था, क्योंकि मैं शुरू से लड़कियों के दरमियान रहने की वजह से लड़कियों की तरह रहना पसंद करने लग गया था। और फिर यही बात मेरे दिमाग में बैठती चली गई और जब मेरे दोस्तों ने मुझे ख्वाजा सरा कहकर चिढ़ाना शुरू किया तो मैं भी वही सोचने लग गया जो वो कहते थे। डॉक्टर की बातों और रिपोर्ट्स को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊं और भरपूर अंदाज में ये खुशी मना सकूं। आज इस बात को काफी साल गुजर चुके हैं और मेरा एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर से वो तमाम एहसासात खत्म हो चुके हैं जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ था, और ये सब कुछ मेरे दोस्तों की वजह से हुआ था। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी बातों पर यकीन न करता तो अपनी जिंदगी का एक सुनहरी दौर भरपूर तरीके से जी सकता था। मगर शुक्र है बहुत देर होने से पहले ही सब कुछ ठीक हो गया। कभी कभी इंसान वो नहीं होता जो इर्द गिर्द वाले उसे सोचने और बन जाने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ भी यही सब हुआ था। काश कोई किसी के दिल और जज्बात के साथ ऐसे खेल ना खेलें कि उसकी जिंदगी बिखरती चली जाए।